معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 51 سے 60 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ابتدا میں چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانذر بِهِ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین وکذالک فتنا بعضہم ببعض لیقولوا أهؤلاء من اللہ علیہم من بیننا الیس اللہ بعلم بالشاکرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہم ان آیات کا 51 سے لے کر 60 تک کی آیات کا ترجمہ۔ اور جو لوگ اور خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کر دو تاکہ پرہیزگار بنیں۔ اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت نکالو۔ ان کے حساب یعنی اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں، بس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہے وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، بھلا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں ہے؟ اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے السلام علیکم کہا کرو۔ اللہ نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس طرح ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو اور اس لیے کہ گناہ گاروں کا رستہ ظاہر ہو جائے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کفار سے کہہ دیں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، یہ بھی کہہ دیں کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا، ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں۔ کہہ دیں کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ جس چیز یعنی عذاب الہی کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیں کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتہ نہیں جڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی
मुअय्यन मुद्दत पूरी कर दी जाए, फिर तुम सबको इसी की तरफ लौट कर जाना है। इस रोज़ वो तुमको तुम्हारे अमल जो तुम करते हो एक एक करके बता देगा। ये इन आयत का तर्जुमा था। अब इन्हीं ये 51 से 60 तक की आयत की तफसीर अल-नूर। जैसे पिछले हिस्से में जिक्र है कि अल्लाह तमाम रसूलों को लोगों को बिशारत देने यानी मानने वालों को बिशारत देने और ना मानने वालों को डराने के लिए मबूस करता है, इसी तरह अब हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि इन्हें कुफ़ार को इस कुरान के ज़रिए खौफ दिलवाओ, यानी इनमें मौजूद इनकी जिन्हें ज़रा भी अल्लाह का खौफ हो वो बातिल माबूदों के बारे में अपनी गलत फहमियाँ दूर कर लें और परहेजगार हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन साहिब ईमान गुरबा और मसाकीन को दूर ना करें जो अपने रब की रज़ा के लिए इसे सुबह शाम पुकारते हैं। इस आयत का शान नुज़ूल कुछ यूँ है कि एक दफ़ा कुफ़ार के सरदार हज़रत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द गुरबा और मसाकीन का हजूम है, और वो कुफ़ार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि इन गुरबा जिनमें बाज़ हमारे ग़ुलाम भी हैं, इनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठना हमारी सरदारी की तौहीन है। अगर इन्हें अपनी मजलिस से उठा दें तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ सकते हैं। इस तरह के सवाल कौम नूह भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से किया करती थी। अहले ईमान की इसमें हौसला अफजाई और इज़्ज़त नफ्स की बहाली के लिए ये आयत नाज़िल की गई, ना ये कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कोई ख्वाहिश थी कि गुरबा अहले ईमान को उठाकर कुफार के सरदारों को कोई अहमियत दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन साहिब सरवत के हिसाब से कुछ नहीं, यानी इनकी कबूलियत इस्लाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं पूछा जाएगा कि वो ईमान क्यों नहीं लाए, और इन पर तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं। फिर इन्हें गरीब अहले ईमान को दूर करो तो कुफार के सरदारों को बता दो कि अहले ईमान को दूर करना इनसे जुल्म है। और यूं ही हमने इनमें बाज़ को बाज़ के ज़रिए यानी अमीर को दौलत देकर और गरीब को गुर्बत देकर आजमाया है कि वो कुफार अहले सरवत कहें ये यही हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान किया है हम में से, तो क्या अल्लाह ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है इनसे जो हकीकतन इसका शुक्र करने वाले हैं। और जब वो गरीब अहले ईमान आए जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं तो इनकी इज़्ज़त अफजाई और हिम्मत बढ़ाने के लिए इनसे कह दें कि तुम पर सलामती हो, तुम्हारे रब ने अपने ऊपर तुम्हारे लिए अपनी रहमत लाजम कर ली है कि तुम में से जो अगर जहालत की वजह से बुराई कर बैठे फिर वो इसके बाद तौबा कर ले और इस्लाह कर ले कि ऐसा गुनाह दोबारा नहीं करूँगा, तो बेशक वो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और इसी तरह हम आयात को मुफस्सल बयान करते हैं ताकि मुजरमों का रास्ता वाज़ेह हो जाए। अब आगे अल्लाह की तौहीद बयान की जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दें कि मुझे मना कर दिया गया है कि इन्हें पूजूं जिनको तुम अल्लाह के सिवा यानी लात व मनात और उज़्ज़ा को वगैरह को पूजते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि मैं तुम्हारी बातिल ख्वाहिशात की इत्तबा नहीं करता, अगर ऐसा हो तो मैं बहक जाऊँगा और हदायत पाने वालों में से नहीं रहूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि मैं तो अपने रब की तरफ से एक वाज़ेह और रोशन दलील पर हूँ और तुम इसे झुठलाते हो, और मेरे पास मेरे इख्तियार में वो नहीं जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो। यानी कुफार कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अगर सच्चे रसूल हैं तो जिन अजाबों से हमें डरा रहे हो वो आ क्यों नहीं जाते। अल्लाह के सिवा किसी को फैसले यानी अजाब नाज़िल करने का कोई इख्तियार नहीं है कि वो अजाब कैसा होगा और कब आएगा।
वो हक फरमाता है, यानी अल्लाह ने तमाम हक़ाइक़ खोल कर बयान कर दिए हैं और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा दें कि अगर मेरे पास इख्तियार में होती वो चीज़, यानी अज़ाब इलाही का नाज़िल करना जिसकी तुम जल्दी में चाह रहे हो, तो मेरे और तुम्हारे दरमियान कब का मामला तय हो चुका होता और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है। और इसी के पास कुंजियां हैं सब गैब के खजानों की, इन्हें वही जानता है और अल्लाह जानता है जो कुछ खुशकी और तरी यानी सहरा और समुंदर में है, और नहीं कोई पत्ता भी गिरता मगर वो इसके इल्म में होता है, और ना कोई ऐसा दाना है ज़मीन की तारीकियों में, और ना कोई तर और खुश्क जो एक रोशन किताब लोहे महफूज में मौजूद ना हो। यानी अल्लाह मखलूक की मौत व हयात की खबर रखता है, खा वो इंसान हो, हैवान हो या नबातात हो, और हर चीज़ इसके कब्ज़ा कुदरत में है। और वही है जो रात को तुम्हें मौत देता है, नींद की हालत में यानी शऊर का चला जाना मौत करार दिया गया है, और जानता है तुम्हारे दिन के वक़्त किए गए कामों को, फिर वो तुम्हें सुबह को बेदार करता है ताकि तुम्हारी ज़िंदगी की मुअय्यन मुद्दत पूरी हो जाए। फिर इसी की तरफ सबको लौटना है, फिर वो बता देगा तुम्हारे सामने, यानी आ जाएगा जो कुछ तुम करते थे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।